হার্দিক স্বাগতম। আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছেন ভারতবর্ষের গৃহমন্ত্রী মাননীয় অমিত শাহজি, উপস্থিত হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশ সভাপতি সাংসদ সম্মানীয় শ্রমিক ভট্টাচার্য মহাশয়। আমি শ্রমিকদেরকে অনুরোধ করব অঙ্গবস্ত্র দিয়ে আমাদের মাননীয় গৃহমন্ত্রীকে সম্মান প্রদর্শন করার জন্য। আমি এরপরে আমাদের বিরোধী দলনেতা এবং ভবানীপুরের প্রার্থী মাননীয় সুরেন্দ্র অধিকারীকে বলবো মা কালীর একটি চিত্র দিয়ে, কালীঘাটের মা কালীর চিত্র দিয়ে আমাদের গৃহমন্ত্রীকে সম্মান প্রদর্শন করার জন্য। আমাদের বাকি তিনজন প্রত্যাশী এখানে রয়েছে, ডক্টর স্বপন দাশগুপ্ত এবং ডক্টর শতরূপা, সবাইকে বলবো উত্তরী নিয়ে সম্মান প্রদর্শন করার জন্য। সন্তোষ পাঠকজি রয়েছেন, সন্তোষ পাঠক মহাশয়কে বলবো উত্তরী নিয়ে সম্মান প্রদর্শন করার জন্য। আমাদের দক্ষিণ কলকাতা জেলার সভাপতি সম্মানীয় অনুপম ভট্টাচার্য মহাশয়কে বলবো উত্তরী নিয়ে সম্মান প্রদর্শন করার জন্য। না, উত্তর কলকাতার সভাপতি তমক ঘোষ মহাশয়কে বলবো এবার আমাদের সামনে স্বাগত ভাষণ রাখবেন আমাদের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের সভাপতি সম্মানীয় শ্রমিক ভট্টাচার্য মহাশয়। মঞ্চে উপস্থিত মঞ্চে উপস্থিত পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মানীয় শ্রী অমিত শাহ, বিরোধী দলনেতা এবং ভবানীপুরের কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী, শ্রদ্ধেয় শ্রী তথাগত রায়, শ্রী স্বপন দাশগুপ্ত, শ্রীমতী শতরূপা, আমাদের এখানে চৌরঙ্গের প্রার্থী শ্রী সন্তোষ পাঠক, এখানে উপস্থিত সমস্ত সম্মানীয় নেতৃবৃন্দ, বিরোধী দলনেতার সহ এখানকার সমস্ত প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র দাখিল করাতে সামিল হতে আজকে আমাদের এখানে সম্মানীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উপস্থিত আছেন। এখানে আমার আর কিছু বলার নেই, আপনাদের এখন উনি সম্বোধিত করবেন। এখানে আমাদের এই ছোট্ট সভা শেষ হয়ে যাবার পর মাননীয় শ্রী অমিত শাহের নেতৃত্বে সমস্ত প্রার্থীরা তাদের মনোনয়নপত্র দাখিল করবেন। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ শ্রমিকদাকে। আমি আমাদের বিরোধী দলনেতা এবং ভবানীপুরের যে প্রত্যাশী সুরেন্দ্র অধিকারী মহাশয়কে বলবো তার সংক্ষিপ্ত ভাষণ রাখার জন্য। আমরা গর্বিত ভারতবর্ষের রাজনীতিতে আধুনিক চাণক্য, যার নেতৃত্বে মোদীজির মার্গদর্শনে 21টা রাজ্যে এনডিএ সরকার হয়েছে, সেই আমাদের সকলের নেতা যিনি ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির স্বপ্ন পূরণ করে কাশ্মীর থেকে 370 হাঁটিয়েছেন, যিনি পশ্চিমবঙ্গ বাঁচাবেন, অনুপ্রবেশকারী মুক্ত করবেন, নারী সুরক্ষা দেবেন, জামাতের হাত থেকে বাংলা বাঁচাবেন, অমিত শাহজি এসেছেন আশীর্বাদ করতে। জেতাবেন তো আমাকে? নন্দীগ্রাম হবে ভবানীপুর তো? মমতা ব্যানার্জি আবার হারবে? বাংলাতে পরিবর্তন হবে? মোদীজির নেতৃত্বে সরকার হবে? আমি অমিতজিকে প্রণাম জানাই, শ্রমিকদাকে শ্রদ্ধা জানাই, সব নেতাকে শ্রদ্ধা। আমাদের নেতা তার ব্যস্ত শিডিউল থেকে এসেছেন, তিনি আমাদের আশীর্বাদ করে আসামের জন্য বেরিয়ে যাবেন প্রচারে, তাই কথা বাড়াবো না। আসুন সবাই মিলে
ব্রিগেড ময়দানে মোদিজি যে বলে গেছেন সেই কাজ আমাদের করতে হবে। এবারে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার তৈরি করতে হবে। বলুন পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার। 26-এর নির্বাচন, 26-এর নির্বাচন। আমি নেতা, স্বরাষ্ট্র সমবায় মন্ত্রী, ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় প্রাক্তন সভাপতি, আমাদের আজ এই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বেরোনোর আগে তিনি আপনাদেরকে তার শুভেচ্ছা দান করবেন। मैं मेरा दिल से मैं विनती कर रहा हूं, माननीय गृह मंत्री जी आप आइए और हम लोग को आशीर्वाद दीजिए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। आज मंच पर उपस्थित पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय, उनके साथ मंच पर उपस्थित हमारे चारों प्रत्याशी, भवानीपुर से श्री शुभेंदु अधिकारी जी, रासबिहारी से डॉक्टर स्वपन दास गुप्ता जी, बालीगंज से शत्रुता घोष जी, चौरंगी से श्री संतोष पाठक जी, मित्रों मैं लंबा भाषण करना नहीं चाहता हूं। बंगाल चुनाव में 15 दिन तक मैं बंगाल में ही रहने वाला हूं। आप सभी के साथ बातचीत करने का बहुत मौका मिलने वाला है, मगर मैं आज यहां आया हूं हमारे चारों प्रत्याशियों के नामांकन के लिए और विशेषकर शुभेंदु अधिकारी के नामांकन के लिए मैं आया हूं। चुनाव के पहले ही करीब करीब समग्र बंगाल का मेरा दौरा हुआ है। बंगाल में के कोने कोने में, कलकत्ता जाइए, दुर्गापुर जाइए, उत्तर बंगाल जाइए, हर जगह पे एक ही आवाज है, इस सरकार को बदल दो, ममता बनर्जी को बाय बाय टाटा कर दो। मैं आज बंगाल की पूरी जनता जो टोलबाजी से त्रस्त है, तृणमूल कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की गुंडाई से त्रस्त है, महिलाओं की असुरक्षा से त्रस्त है, बेरोक टोक घुसपैठ होकर बंगाल की डेमोग्राफिक चेंज हो रही है, इससे त्रस्त है। आए दिन बम धमाके, गोलीबारी से त्रस्त है, युवा बेरोजगारी से त्रस्त है और करप्शन का इतना रिकॉर्ड तोड़ रिकॉर्ड जो ममता जी ने बनाया है, इससे भी त्रस्त है। पूरे बंगाल की जनता मांग कर रही है कि महान पश्चिम बंगाल के अंदर अब परिवर्तन होना चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। पश्चिम बंगाल की बॉर्डर को सील कर
और देश भर से घुसपैठियों को चुन चुन कर देश के बाहर निकालना चाहिए। और कवि गुरु की कल्पना का सोनार बांग्ला बनाना चाहिए। इसलिए पूरे बंगाल की जनता परिवर्तन के लिए तत्पर बैठी है, तैयार बैठी। जहां जाते वहां कहते हैं 5 मई को भाजपा सरकार आने वाली है। मगर मैं आज भवानीपुर के मतदाता भाइयों बहनों को विनती करने आया हूं। पूरा बंगाल ममता बनर्जी को विदाई करने के लिए तैयार है, मगर भवानीपुर वालों, पूरे बंगाल में परिवर्तन करने आपके हाथ में है। ऐसा है, एक एक सीट कर जीतेंगे, 170 सीट तक जाएंगे, तब परिवर्तन होगा, ठीक है ना? मगर मेरे पास एक शॉर्टकट है। अगर भवानीपुर वाले एक ही सीट जिता दे तो परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। अरे शुभेंदुदा हमारे नंदीग्राम से लड़ना चाहते थे। मैंने शुभेंदुदा को कहा था कि सिर्फ नंदीग्राम नहीं, ममता के घर में जाकर उसको हराना है। और इनका रिकॉर्ड है, गत चुनाव में ममता बंगाल में सरकार तो बना पाई थी, मगर ममता दीदी नंदीग्राम में शुभेंदुदा के सामने चुनाव हार गई थी। इस बार ममता जी पूरे बंगाल में भी हारेगी और भवानीपुर में भी हारेगी। आज सुबह कुछ पत्रकारों का फोन आया कि वातावरण तो बहुत अच्छा है, बंगाल की जनता चाहती है कि ममता बनर्जी चली जाए, तृणमूल के गुंडे जेल में जाए, भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या करने वाले को चुन चुन कर जेल में डालना चाहिए। तो मैंने बोला भाई तकलीफ क्या है? तो उन्होंने कहा टीएमसी के गुंडे वोट नहीं करने देंगे। मैंने कहा है इस बार कोई डरना मत, कोई गुंडे की औकात नहीं है जो बंगाल के वोटर्स को रोक पाए। इस बार भय मुक्त होकर वोटिंग करना है और सिर्फ हराना नहीं है, टीएमसी को मूल समेत उखाड़ कर बंगाल की खाड़ी में फेंक देना है। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से बंगाल में भ्रष्टाचार का शासन हो गया, टोलबाजी फैल गई, सिंडिकेट ने बंगाल की जनता का जीना हराम कर दिया है और घुसपैठ इतनी बढ़ा दी कि पश्चिम बंगाल का अस्तित्व ही खतरे में आ गया है। ये सारी चीजों का एक ही रास्ता है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी। 2014 से जिस राज्य ने मोदी जी पर भरोसा रखकर सरकारें बनाई, वो सभी राज्य विकास के रास्ते पर आगे चल गए हैं। अब बारी हमारे बंगाल की है। मुझे बताओ भवानीपुर वालों, बंगाल में परिवर्तन करना है या नहीं करना है? बंगाल में तो परिवर्तन होगा ही, भवानीपुर में परिवर्तन करना है या नहीं करना है? मैं भवानीपुर की जनता को करबद्ध निवेदन करने आया हूं, 2 हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं
पूरे बंगाल की मुक्ति के लिए हमारे प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी को प्रचंड बहुमत के साथ आप जिताइए। और ये परिवर्तन पश्चिम बंगाल के लिए शुभंकर होगा। विवेकानंद जी, कवि गुरु टैगोर, बंकिम चट्टोपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कल्पना का सोनार बांग्ला हमें बनाना है, इसलिए परिवर्तन करना है। तो फिर से एक बार शुभेंदु दा, हमारे डॉक्टर स्वपन दास गुप्ता, बहन शत्रुता घोष, संतोष पाठक, हमारे चारों प्रत्याशियों को चुनाव जीतने की बहुत बहुत शुभकामना कर भवानीपुर वालों को पूरे बंगाल के परिवर्तन की जिम्मेदारी आपकी है, इसका एहसास कराकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे वंदे, भारत माता की